Good morning, everyone. Is everyone fine? Lab manual work was given. I hope you all have done. Kindly tell me in the comment section that work is being done by everyone. Okay, and some keywords was also given. Although these were, I think, 4 or 5 keywords was there. Keywords and lab manual. Kindly tell fast in the comment section. Okay. So let us come back to our work. In the previous video, previous periods, जो लास्ट पीरियड थे हमने उसमें किया था कि हाउ टू इंक्रीज द फ्रिक्शन, बाय विच वेज द फ्रिक्शन कैन बी इंक्रीज्ड. एज यू ऑल नो वेरी वेल दैट वी आर डूइंग दिस पैराग्राफ इंक्रीजिंग एंड रिड्यूसिंग फ्रिक्शन. ओके, सो हम कर चुके हैं कि इंक्रीज फ्रिक्शन कैसे कर सकते हैं. देयर आर मैनी वेज लाइक ब्रेक पैड्स लाइनिंग इन ऑटोमोबाइल्स are made rough to increase the friction between lining and the rim of the wheel. Tires are treated to increase friction. Okay, vehicles are treads on tires offers more friction which gives better road grip. Soles of shoes are treated to increase friction. A javelin thrower rubs some powder on his palm to get better grip on the javelin. Kabaddi players rub their hands with soil for a better grip of their opponents. Okay, so tires of the bus, cars, trucks are treated. इससे क्या होता है? They will increase the friction between the tire and the road, providing it a better grip. Okay, so now the ways by which the friction can be reduced. Clear? So we will start from here now, from this paragraph. Why do you sprinkle fine powder on the carom board? हम कैरम पे पाउडर क्यों डालते हैं? Yes, sometimes we find that कि जो कैरम का सरफेस है, the striker is not working properly. स्ट्राइकर जो है उस पर अच्छे से वर्क नहीं कर रहा. Yes, then what we are doing? We are sprinkling powder on the carom. हम कैरम पे पाउडर डालते हैं. You might have noticed that when a few drops of oil are poured on the hinges of a door, the doors move smoothly. Sometimes what happen कि जो door होता है, when we are locking it, तो during locking it makes sound, ये आवाज़ करता है. Then some oiling is to be done there. ऐसा क्यों? Okay, a bicycle and a motor mechanic use grease between the moving parts of these machines. Grease use करते हैं, they are using grease. Okay, in all above the cases we want to reduce friction in order to increase efficiency. हमें फ्रिक्शन को रिड्यूस करना है एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए. हियर इज द वर्ड इंक्रीज एफिशिएंसी. व्हेन ऑयल, ग्रीस और ग्रेफाइट इज अप्लाइड बिटवीन द मूविंग पार्ट्स ऑफ अ मशीन. जब हम क्या अप्लाई करेंगे? ऑयल, ग्रीस और ग्रेफाइट जब अप्लाई करेंगे मूविंग पार्ट्स ऑफ मशीन के मूविंग पार्ट्स पे, देन अ थिन लेयर इज फॉर्म्ड देयर. एक थिन लेयर बन जाएगी और जो मूविंग सरफेस है इट विल नॉट डायरेक्टली रब अगेंस्ट ईच अदर. ओके, एक दूसरे के अगेंस्ट रब नहीं होंगे. जो इंटरलॉकिंग होंगी फिर क्या होगा? इंटरलॉकिंग ऑफ द इरेगुलरिटीज इज अवॉइडेड टू अ ग्रेट एक्सटेंट. इंटरलॉकिंग इरेगुलरिटीज़ की क्या हो जाएंगी? वो अवॉइड हो जाएंगी. एंड मूवमेंट बिकम्स स्मूथ. जो मूवमेंट है वो स्मूथ हो जाएगी. क्लियर? द सब्सटेंसेस विच रिड्यूस फ्रिक्शन. लुब्रिकेंट्स क्या हैं? लुब्रिकेंट्स वर्ड इज गिवन हेयर. व्हाट आर लुब्रिकेंट्स विच आर रिड्यूस फ्रिक्शन, विच आर यूज रिड्यूस फ्रिक्शन. क्लियर? जो सब्सटेंस फ्रिक्शन को रिड्यूस करें. In some machines, it may not be advisable to use oil as lubricant. Okay, कुछ machines में हम oil को as a lubricant use नहीं कर सकते. It is not advisable. An air cushion between the moving parts is used to reduce friction. Air cushion क्या होता है? Moving parts में friction को reduce करने के लिए use होता है. As you will see here in this diagram, action of lubricant.
surface 1, surface 2, then what is there, lubricant is to be applied. lubricant अप्लाई क्यों किया, क्योंकि जो इंटरलॉकिंग है इरेगुलरिटीज़ की वो अवॉइड हो जाएंगी। ये फ्रिक्शन को रिड्यूस करके उनकी एफिशिएंसी इंक्रीज कर देगा। ओके, सो फ्रिक्शन रिड्यूस करने के वेज कौन कौन से हैं? बाय पॉलिशिंग द सरफेस, सरफेस को पॉलिश करके। रफ सरफेस कैन बी मेड स्मूथ बाय पॉलिशिंग। ओके, उस सरफेस को पॉलिश कर दो। पॉलिशिंग रिमूव्स जो भी उसके क्या है, मीन्स इफ द सरफेस इज नॉट स्मूथ, उसको जो रफ सरफेस है उसको निकाल देगा फ्रॉम द सरफेस, एंड देयर फॉर पॉलिशिंग ऑफ द सरफेस रिड्यूस द फ्रिक्शन। ओके, बाय स्प्रिंकलिंग अ सॉफ्ट स्लिपरी फाइन पाउडर ऑन द सरफेसेस। ओके, बाय स्प्रिंकलिंग मीन्स सॉफ्ट और स्लिपरी फाइन पाउडर स्प्रिंकल कर दें उस सरफेस पे। ओके, सो अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ विच पाउडर, इट इज टेल्कम पाउडर। टेल्कम, TALCUM, स्मॉल क्वांटिटी अगर टेल्कम पाउडर की वुडन सरफेस पे, फ्लोर पे हम स्प्रिंकल कर दें तो क्या होगा, इट रिड्यूसेस फ्रिक्शन। दैट इज़ वाई अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ टेल्कम पाउडर इज अप्लाइड ऑन कैरम बोर्ड। क्लियर? स्मॉल क्वांटिटी हम टेल्कम पाउडर कहाँ यूज़ करते हैं? कैरम बोर्ड पे। किस लिए? फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए। ओके, ग्रेफाइट पाउडर इज यूज्ड इन मशीन्स टू रिड्यूस फ्रिक्शन। कौन सा पाउडर वहाँ पे यूज़ होगा? ग्रेफाइट पाउडर इज यूज्ड इन मशीन्स। ओके, सो बाय अप्लाइंग ऑयल और ग्रीस ऑन द सरफेसेस, और यू कैन से बाय लुब्रिकेशन। ऑयल और ग्रीस अप्लाई कर दें। ऑयल ग्रीस फॉर्म्स अ थिन लेयर बिटवीन टू सरफेसेस, जो यू कैन से इट इज lubricant also, they will form a thin layer between two surfaces, thus a lubricant separates the two surfaces. lubricant क्या करेगा? दो सरफेस को आपस में सेपरेट करता है, and it reduces the chances of interlocking of two surfaces. okay, as it will separate two surfaces, तो इंटरलॉकिंग के चांस क्या है वहाँ पे कम हो जाएंगे और इससे फ्रिक्शन रिड्यूस होगा। क्लियर? सोप सॉल्यूशन ऑल्सो एक्ट एज ए लुब्रिकेंट। कौन सा सॉल्यूशन? सोप सॉल्यूशन भी एक लुब्रिकेंट की तरह ही वर्क करता है। ओके, दैट इज़ वाई वी टेंड टू स्लिप ऑन द फ्लोर इफ़ इट इज़ कवर्ड विथ सोप सॉल्यूशन। इसलिए हम फ्लोर पे स्लिप हो जाते हैं अगर फ्लोर पे क्या है? सोप सॉल्यूशन फ्लोर पे है। ओके, दीज आर द वेज ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, लाइक कैरम पे स्प्रिंकल पाउडर स्प्रिंकल करना। क्लियर? मूविंग पार्ट्स जो मशीन के, उसको किससे कोट करना? ग्रीस और ऑयल से। मीन्स इट इज़ कॉल्ड एज लुब्रिकेंट्स। जिससे क्या होगा? इरेगुलरिटीज़ क्या हो जाएंगी? इट विल कवर द इरेगुलरिटीज़, इट विल रिड्यूस द इंटरलॉकिंग ऑफ द इरेगुलरिटीज़। और जो एरिया है, मूविंग पार्ट है, वो स्मूथ हो जाएंगे। कैसे? मिनिमाइज करके फ्रिक्शन को। ओके, so in some machines however it is not advisable to use lubricants. The friction in such machines is reduced by providing an air cushion between the moving parts. Okay, so it is about the how the friction can be reduced. One more is there, use of ball bearing instead of non-moving metal to metal contact. बॉल bearing यूज़ करके, I think you know also what is ball bearing. Okay, so it reduces friction as sliding friction is transformed into rolling friction. बॉल bearing यूज़ करके क्या होगा? जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है ट्रांसफ़र किस में हो जाएगा? रोलिंग फ्रिक्शन में। ओके, सो एज विल टॉक अबाउट इन योर बुक नेक्स्ट, वी आर हेयर दैट in this, can we reduce friction to zero by polishing surfaces or using large amount of lubricants? क्या हम फ्रिक्शन को बिल्कुल रिड्यूस कर सकते हैं सरफेस को पॉलिश करके और लार्ज अमाउंट ऑफ लुब्रिकेंट यूज़ करके? सी हियर नाउ, फ्रिक्शन कैन नेवर बी एंटायरली एलिमिनेटेड। फ्रिक्शन को हम टोटली रिमूव नहीं कर सकते। नो सरफेस इज परफेक्टली स्मूथ, सम इरेगुलरिटीज़ आर ऑलवेज देयर। कुछ ना कुछ इरेगुलरिटीज़ वहाँ पे होंगी। ओके,
So next is 12.5, wheels reduce friction. Okay, let us talk about the wheel reduces friction. So you might have seen attaches and other pieces of luggage fitted with rollers. You have seen this bag with you also, with your parents also, whenever you are going somewhere for tour, trip, or you are going somewhere else. तो आप लोग you can see in this diagram here, you may see here this type of bag. This type of bag are having wheels in them. Wheels किस so even a child can pull such pieces of luggage. Why is it so? Let us find out. This type of bag have you seen whenever you are going to airport, whenever you are going with your parents any tour, any trip, because इसमें जो है wheel है. This bag is having wheel. Okay, जिसको pull करना very it becomes very easy. Okay, now come to this activity 12.4. So इसमें क्या है, टेक अ फ्यू पेंसिल्स विच आर सिलेंड्रिकल इन शेप. कुछ पेंसिल लो जिनकी शेप कैसी है, सिलेंड्रिकल. प्लेस देम पैरेलल टू ईच अदर ऑन अ टेबल. पैरेलल रख दो एक टेबल पे. प्लेस अ थिक बुक ओवर इट. उनके ऊपर एक थिक बुक रखो. नाउ पुश द बुक. अब बुक को पुश करो. यू ऑब्जर्व द पेंसिल्स रोलिंग एज द बुक मूव्स. जैसे जैसे बुक मूव होगी पेंसिल्स भी रोल करेंगी. Do you feel it easier to move the book in this way than to slide it? Yes. क्या ऐसा करना easy है बुक को स्लाइड करने के उससे? Do you think that the resistance of the motion of the book have been reduced? क्या जो ऐसे तो मोशन जो बुक की मोशन है वो रिड्यूस हो गई है? Have you seen heavy machinery being moved by placing logs under it? Have you seen heavy machinery being moved? आपने कभी कभी देखा भी होगा कि जो मशीन है दे आर बीइंग मूव्ड बाय व्हेन प्लेसिंग उनके अंदर उनके नीचे जो लॉग्स ऑफ वुड रख के उनको मूव करना. ओके, सो लेट अस टॉक अबाउट दिस नाउ. व्हेन वन बॉडी रोल्स ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी इट इज़ कॉल्ड एज रोलिंग फ्रिक्शन. आई थिंक यू आर अवेयर अबाउट दिस, हम कर चुके हैं. ओके, रोलिंग रिड्यूसेस फ्रिक्शन. It is always easier to roll than to slide a body over other. Okay, it is easy to roll than to slide. Roll करना easy है comparatively slide के. That is the reason it is convenient to pull luggage fitted with rollers. Okay, जो बात the thing which we have discussed here ये यहाँ पे है. This is the reason it is convenient to pull luggage with the rollers. Okay. So can you now understand why the wheel is said to be one of the greatest invention of mankind? Okay, क्योंकि ये क्या करते हैं, फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं. वी कैन पुल द लगेज वेरी इजीली. कंपेरेटिवली अगर हम उसको अपने हैंड में लेके चलें या अपने सिर पे रख के चलें उसको पुल करना ईजी है व्हील्स की हेल्प से. ओके, सो नाउ वी आर इन हियर इन दिस पैराग्राफ. Since the rolling friction is smaller than the slide friction, rolling friction slide friction से small है. Sliding is replaced in most machines by rolling by the use of ball bearings. Okay, slide कुछ machines पर replace किससे हुई है? By rolling by the use of ball bearings. Common examples are the use of ball bearings between hubs and axles of the सीलिंग फैंस बाईसाइकिल्स. बेटा हैव यू सीन बॉल बेरिंग्स? बॉल बेरिंग्स आप लोगों ने देखे होंगे शायद. दीज यू कैन फाइंड ईजिली एट द शॉप्स ऑल्सो, मीन्स वेयर यू कैन फाइंड द वर्क ऑफ मशीनरी मोस्टली. दीज यू कैन फाइंड ईजिली देयर. So these are the ball bearings. In the diagrams you can see ball bearings reduce friction. You may see here what are the ball bearings. I think you remember now कि what are the ball bearings. So now what is left? Fluid friction. Okay, fluid friction is left. Now come to this topic, fluid friction. Okay, listen carefully now. You know that
एयर इज़ वेरी लाइट एंड थिन। हैव यू सीन एयर? एयर को देखा है किसी ने? नो, ओनली वी कैन फील इट, वी कैन फील द एयर ओनली। सो येट इज एक्सर्ट फ्रिक्शनल फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट्स। ये ऑब्जेक्ट्स पे फ्रिक्शनल फोर्स लगाती है मूविंग थ्रू इट, जो इसके थ्रू मूव करते हैं। सिमिलरली वाटर एंड अदर लिक्विड्स एक्सर्ट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन व्हेन ऑब्जेक्ट्स मूव थ्रू देम। जो वाटर और अदर लिक्विड्स भी हैं वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगाते हैं व्हेन ऑब्जेक्ट्स मूव थ्रू देम, जब ऑब्जेक्ट्स उनके थ्रू मूव करते हैं। ओके, इन साइंस द कॉमन नेम ऑफ गैसेस एंड लिक्विड्स इज फ्लूइड। सो लिक्विड्स एंड गैसेस आर कॉमनली नोन एज फ्लूइड्स। लिक्विड और गैस को हम क्या बोलते हैं? फ्लूइड्स बोलते हैं। ओके, दे ऑल्सो एक्सर्ट अ फ्रिक्शनल फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट्स। ये ऑब्जेक्ट्स पे क्या लगाते हैं? फ्रिक्शनल फोर्स लगाते हैं। सो वी कैन से दैट फ्लूइड्स एक्सर्ट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन ऑब्जेक्ट्स इन मोशन थ्रू देम। क्लियर? सो वी कैन से कि जो फ्लूइड्स हैं दे एक्सर्ट, वो लगाते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑब्जेक्ट्स पे जो उनके थ्रू मूव करते हैं। क्लियर? सो वन नाउ डेफिनेशन इज व्हाट इज ड्रैग। द फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज ड्रैग। जो फ्रिक्शनल फोर्स फ्लूइड्स ने लगाया उसे क्या बोलते हैं? दैट इज बीइंग कॉल्ड एज ड्रैग। ओके, सो द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट in a fluid depends on its speed with respect to the fluid. ओके, जो फ्रिक्शनल फोर्स है ऑब्जेक्ट पे फ्लूइड में किस पे डिपेंड करेगा? इसकी स्पीड से। ओके, इसकी स्पीड पे डिपेंड करेगा। और किस पे डिपेंड करता है? कि फ्लूइड का नेचर कैसा है और ऑब्जेक्ट की शेप कैसी है। ओके, फ्रिक्शनल फोर्स या तो ऑब्जेक्ट की इस पे डिपेंड करेगा, स्पीड पे, या उसकी शेप पे। उसकी शेप कैसी है मीन्स ऑब्जेक्ट की शेप कैसी है, या फिर फ्लूइड का नेचर कैसा है। क्लियर? इट इज़ ऑब्वियस मीन इट इज़ क्लियर दैट व्हेन ऑब्जेक्ट्स मूव थ्रू फ्लूइड्स दे हैव टू ओवरकम फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन देम। जब भी ऑब्जेक्ट्स फ्लूइड के थ्रू मूव करते हैं तो उनको दे हैव टू ओवरकम, उनको बाहर आना है किससे? जब फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन देम। इन दिस प्रोसेस दे लूज एनर्जी। ओके, वो उसमें एनर्जी लूज करेंगे। एफर्ट्स आर देयर टू मिनिमाइज फ्रिक्शन। क्लियर? सो ये क्या एफर्ट्स करते हैं? फ्रिक्शन को मिनिमाइज करने के। सो ऑब्जेक्ट्स हैव बीन गिवन स्पेशल शेप्स। ऑब्जेक्ट को स्पेशल शेप मिलती है। क्लियर? वेयर डू यू थिंक साइंटिस्ट गेट हिंट्स फॉर दीज स्पेशल शेप्स? ओके, मीन जो साइंटिस्ट हैं उनको ये इंडिकेशन कहाँ से मिलती है स्पेशल शेप्स की? फ्रॉम नेचर। ऑफ कोर्स लाइक बर्ड्स हैं, फिशेस हैं, हैव टू मूव अबाउट इन फ्लूइड्स ऑल द टाइम। ओके, जो कुछ बर्ड्स हैं, फिशेस हैं, उनको कहाँ पे मूव करना है? उनको फ्लूइड में मूव करना है, मीन्स वाटर में मूव करना है एवरी टाइम। देयर बॉडीज मस्ट हैव इवॉल्व टू शेप्स विच कुड मूव देम, मेक देम लूज एनर्जी इन ओवरकमिंग फ्रिक्शन। देयर बॉडी मस्ट हैव इवॉल्व टू शेप्स, क्योंकि उनकी बॉडी ऐसी हो चुकी है उन शेप्स में, विच वुड मेक देम लूज लेस एनर्जी। उनकी बॉडी मीन्स ऐसी शेप में है, वो वाटर में, लिक्विड में मूव भी करते हैं, बट दे आर लूजिंग लेस एनर्जी। उनकी एनर्जी भी इतनी लूज नहीं होती। ओके, सो लुक केयरफुली अबाउट द शेप ऑफ प्लेन। यू कैन फाइंड सिमिलरिटी बिटवीन द शेप ऑफ प्लेन एंड द शेप ऑफ अ बर्ड। ओके, कोई सिमिलरिटी है इनमें? इनफैक्ट ऑल द व्हीकल्स आर डिजाइन टू हैव शेप्स विच रिड्यूस फ्रिक्शन। ओके, जो मीन्स जो शेप्स है ऑब्जेक्ट्स की उनके कारण भी फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं। ओके, लाइक एरोप्लेन, शिप्स एंड कार आर डिजाइन टू हैव स्ट्रीमलाइन शेप। किस लिए? ताकि जो एनर्जी है वो कम लॉस हो। ओके, और एफर्ट्स आर मेड टू मिनिमाइज द फ्लूइड फ्रिक्शन। और किस लिए एफर्ट्स करते हैं? फ्लूइड फ्रिक्शन को मिनिमाइज करने के लिए। क्लियर? ओके, सो स्ट्रीमलाइंड शेप। द शेप ऑफ अ सबमरीन इज स्ट्रीमलाइंड विच ऑफर इट्स लेस रेजिस्टेंस। Okay, streamlined, I will tell you what is this. I will send you.
So the students, dear students, chapter is over. Chapter over हो चुका है. If any doubt is there, you may ask in the comment section here. Okay. One activity that I tell to you now about pencils and putting a book on that, I will send the video. Watch in that. Okay. So goodbye everyone. Thank you. If doubt is there, ask in the comment section. I'm waiting there. Okay. I will see. If any doubt is there, I will clear there. Okay. Goodbye everyone.